دوستو آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہمیں لاہور سے ہمارے ایک بہت ہی پرانے سامع فہد صاحب نے بھیجا ہے۔ فہد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لرزہ خیز اور ناقابل فراموش واقعہ ان کے خاندان کے ایک نہایت ہی معزز اور قابل احترام بزرگ ان کے دادا جان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بقول ان کے اس واقعے کا ایک ایک لفظ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انہی بزرگ کی زبانی یہ خوفناک داستان سنتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 برس پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 20 برس کے لگ بھگ تھی اور جوانی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ان دنوں میں نے تازہ میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ریلوے میں ملازمت مل گئی۔ ویسے تو میرا خواب فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کرنا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں یہ سعادت نہیں لکھی تھی۔ میں نے اپنی اس خواہش کے پورا نہ ہونے پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک سرکاری نوکری جیسی نعمت سے نواز دیا۔ میری تعیناتی ایک ایسے دور دراز علاقے میں ہوئی جس کا نام بھی میں نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میری ڈیوٹی لگی وہ ایک بہت ہی چھوٹا تقریباً گمنام سا اسٹیشن تھا، جو گاؤں کی مرکزی آبادی سے بھی کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ویرانے میں واقع تھا۔ میرے علاوہ اس پورے اسٹیشن پر کوئی دوسرا ملازم تعینات نہ تھا۔ مجھ سے پہلے جو اسٹیشن ماسٹر وہاں موجود تھے وہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے، اور ان کی جگہ عارضی طور پر بھیجا جانے والا ایک اور ملازم بھی اسٹیشن کا چارج میرے حوالے کرتے ہی ایسے وہاں سے رخصت ہوا جیسے وہ کسی قید سے رہائی پا رہا ہو۔ گاؤں سے 4 کلومیٹر دور اس سنسان اور ویران ریلوے اسٹیشن پر اب میں تنہا تھا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پرانی لیکن نہایت خوبصورت اور صاف ستھری مسجد بنی ہوئی تھی، جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ دن بھر کی تنہائی اور ویرانی سے اکتا کر میں وہیں نماز پڑھ لیتا اور کچھ دیر اللہ کے حضور بیٹھ کر دل کو سکون مل جاتا۔ اکیلا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے چھٹی بھی بہت کم ملا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے 4 مہینے اپنے گھر اور گھر والوں سے دور رہنا پڑتا تھا۔ ان دنوں اس ریلوے ٹریک پر گنتی کی صرف 3 گاڑیاں ہی چلتی تھیں، اور تینوں ہی اس چھوٹے سے اسٹیشن پر چند لمحوں کے لیے رکتی تھیں۔ اسٹیشن چونکہ بہت چھوٹا اور غیر اہم تھا، اس لیے یہاں کوئی جدید سگنل سسٹم موجود نہیں تھا۔ بس اسٹیشن کے ساتھ ہی گزرنے والی کچی سڑک پر ایک پھاٹک لگا ہوا تھا، جسے ٹرین کے آنے سے پہلے بند کرنا اور گزر جانے کے بعد کھولنا میری ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ حالانکہ اس ویران سڑک پر وہ بھی 50 سال پہلے بہت ہی کم ٹریفک گزرتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی بیل گاڑی یا ٹریکٹر ٹرالی ہی نظر آتی تھی، مگر ڈیوٹی تو ڈیوٹی تھی، جسے ہر حال میں نبھانا لازمی تھا۔ پھر وہ رات آئی جو میری زندگی کی سب سے بھیانک اور ناقابل فراموش رات بن گئی۔ اس رات 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور ہر طرف دودھیا چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ میں رات کے وقت آنے والی آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں بس یہی خواہش تھی کہ یہ گاڑی جلد از جلد یہاں سے گزرے اور میں بھی اپنے کوارٹر میں جا کر آرام سے نیند کے مزے لوں۔ روزانہ کی طرح رات 11 بجے آخری گاڑی اس ٹریک سے گزرتی تھی۔ میں نے وقت پر پھاٹک بند کیا اور واپس اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ گیا کہ شاید کوئی مسافر ٹکٹ خریدنے آ جائے، لیکن عام طور پر اس اسٹیشن پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ کئی دن ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ ایک بھی مسافر اسٹیشن کا رخ نہیں کرتا تھا۔ اس رات شدید گرمی تھی اور حبس کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس دور میں یہ اسٹیشن بجلی کی سہولت سے بھی محروم تھا، اس لیے میں پلیٹ فارم پر ہاتھ میں لالٹین تھامے ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، جھنگوروں کی آوازیں اس خاموشی کو مزید پرسرار بنا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دور سے ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس کی روشنیاں اندھیرے کو چیرتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ بس چند منٹوں کی بات ہے۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر پھاٹک سے تھوڑا ہی پیچھے اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز کے ساتھ ٹرین چنگاریاں اڑاتی ہوئی رک گئی۔ میں شدید پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے، ریل گاڑی وہاں کیوں رک گئی؟ حالانکہ ٹریک بالکل صاف تھا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں فوراً لالٹین اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ایسا وحشت ناک اور دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ کوئی بدقسمت شخص گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان گنوا چکا تھا۔
उसकी दोनों टांगें धड़ से अलग होकर कुछ फासले पर पड़ी थीं। बाजू और सर भी पूरी तरह कुचले जा चुके थे और वह मौके पर ही दम तोड़ गया था। तमाम मुसाफिर खौफ और दहशत के आलम में गाड़ी से बाहर निकल आए थे। ज़्यादातर लोग इस वाक़े को खुदकुशी करार दे रहे थे, जबकि कुछ लोग ड्राइवर को मशकूक नज़रों से देख रहे थे। मैंने आगे बढ़कर ड्राइवर से पूछा कि यह खौफनाक हादसा कैसे पेश आया। वह खुद भी सहमा हुआ था। कांपती हुई आवाज़ में बोला, जनाब, ये शख्स बिल्कुल अचानक इंजन के सामने आ गया। मुझे ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने उस लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके पटरी से थोड़े फासले पर रखा और किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर उस पर डाल दिया। मैं इस इलाके के तकरीबन तमाम लोगों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था, मगर यह शख्स इस इलाके का नहीं लगता था। यह इम्कान भी हो सकता था कि शायद यह किसी के घर मेहमान आया हो, क्योंकि यह स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन के नीचे आकर मर चुका था। न उसके पास कोई सामान था और न ही कोई शिनाख्ती दस्तावेज। ट्रेन में मौजूद तमाम मुसाफिर, ख़ास तौर पर औरतें और बच्चे, बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे और वे जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहते थे। वे बार बार ड्राइवर से ट्रेन चलाने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान मुझे पता चला कि ट्रेन में पुलिस के 2 अहलकार भी मौजूद हैं। मैंने ड्राइवर से दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी एक पुलिस वाला मेरे पास छोड़ दें, ताकि हम दोनों रात भर उस लाश के पास गुजारें और सुबह किसी न किसी तरह उसके घर वालों तक खबर पहुंचाने की कोशिश करें। मगर उन पुलिस अहलकारों ने वहां रुकने से साफ इनकार कर दिया। गार्ड ने भी यह कहकर उनकी हौसला अफजाई की कि यह ट्रैक बहुत लंबा और सुनसान है, इसलिए खुदा न खास्ता किसी भी नागवार वाक़े से निपटने के लिए हमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा दोनों पुलिस अहलकारों का हमारे साथ चलना ज़रूरी है। मैंने बहुत इसरार किया, उनकी मिन्नत समाजत की कि रेलवे स्टेशन गांव से बहुत दूर है और मैं रात के इस पहर उस लाश को अकेला छोड़कर गांव से किसी साथी को बुलाने भी नहीं जा सकता। कम अज़ कम मुझे इतना मौका तो दें कि मैं गांव से किसी को बुला लाऊं। मेरी हालत देखकर वे जान चुके थे कि मैं अंदर से बुरी तरह खौफजदा हो चुका हूं, मगर वे भी शायद अपनी जगह मजबूर थे। उन्होंने मुझसे फैसलाकुन मगर नरम लहजे में कहा, महतरम, यह रेलवे स्टेशन आपके झेरे साया है, इसलिए इस वाक़े के बाद लाश का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। लिहाजा जब तक उसके वारिस यहाँ न पहुँच जाए, उसका क्या करना है ये अब आपका मसला है। और चंद ही लम्हों बाद ट्रेन धुआं उड़ाती, अपनी सीटी बजाती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं अब तन्हा, हाथ में लालटेन पकड़े, उस कटी फटी लाश के करीब खड़ा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ चांद की रोशनी थी, मेरी तन्हाई थी और एक बेनाम लाश का वजूद। मेरे कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा मौजूद था। मैंने लालटेन एक तरफ रखी और लाश से थोड़े फासले पर वह कपड़ा ज़मीन पर बिछाकर उस पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। चांद की चांदनी में हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी, मगर उस लाश की मौजूदगी की वजह से मैं शदीद खौफज़दा था। गर्मी वैसे भी बहुत थी और करीब कोई आबादी भी नहीं थी। उस वीराने में मैं और उस लाश के अलावा कोई और जीरूह मौजूद न था। मैं बहुत डरा और सहमा हुआ। लाश के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मुझे पूरी रात इसी तरह गुजारनी है। वक़्त किसी ठहरे हुए पानी की तरह साकिन हो चुका था। हर गुजरता लम्हा मेरे खौफ में इजाफा कर रहा था। मैं लाश के करीब बैठा आयतुल कुर्सी और दीगर दुआओं का विर्द कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन थी कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस वीराने में चांदनी रात के बावजूद एक अजीब सी वहशत तारी थी। दूर कहीं गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें आती तो मेरा दिल दहल कर रह जाता। आखिर बैठ बैठ कर मैं थक गया और आहिस्ता से कपड़े पर ही लेट गया, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं हर हाल में जागता रहूँगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर मैयत के पास बैठे सब लोग सो जाएं तो मैयत के मुर्दा जिस्म में जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। ये बातें सोच सोच कर मैं पहले ही बहुत डर चुका था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। किसी ने सच ही कहा था कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। जागने की भरपूर कोशिश के बावजूद न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं नींद की गहरी वादियों में चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को नोच कर खा रहा हो। एक करख्त और नागवार सी छर छर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं एक झटके से उठ बैठा। मैंने फ़ौरन उठकर लाश की तरफ देखा तो वह बिल्कुल सही हालत में वैसी ही पड़ी थी जैसे हमने रखी थी, कपड़े से ढकी हुई।
मैंने उसे अपना ख्वाब या वहम समझकर जहन से झटक दिया, मगर अंदर से मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा इस बार मैंने सख्ती से जागने की कोशिश करने का फैसला किया। उस वक्त हवा भी बंद हो चुकी थी और हबस मजीद बढ़ने लगा था। चांद की रोशनी में लाश का एक एक अंग वाज़ेह नजर आ रहा था, जिसे देखकर खौफ की एक खतरनाक लहर मेरे पूरे जिस्म से गुजर जाती थी। मगर मैं कर भी क्या सकता था सिवाय वहां रात गुजारने के। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि मैंने क्यों इस स्टेशन पर नौकरी की हामी भरी, जहां मेरे सिवा और कोई मुलाजिम मौजूद नहीं। शायद आधी रात गुजर चुकी थी और बदकिस्मती से मुझे नींद ने फिर अपनी आगोश में ले लिया। इस बार मैं पहले से ज़्यादा गहरी नींद में था। कुछ ही देर सोने के बाद मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे लाश को कोई छेड़ रहा हो। मुझे लेटे लेटे जहन में आया कि शायद कोई जंगली जानवर जैसे गीदड़ या लकड़बग्घा उसे खाने की कोशिश न कर रहा हो। मैं फौरन उठ बैठा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई जानवर मौजूद न था। लेकिन यह क्या, लाश अपनी जगह से काफ़ी आगे सरक चुकी थी। यह मंजर देखकर मैं तकरीबन उछल पड़ा और खौफ से मेरा पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि लाश के टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके एक साथ रखा था, मगर अब उस लाश का धड़ टांगों से काफ़ी फासले पर पड़ा था, जैसे कोई उसे घसीट कर वहाँ ले गया हो। यह मंजर देखकर मेरा दिल डूबने लगा और खौफ से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैंने लालटेन उठाकर आसपास देखा। लाश के इर्द गिर्द किसी जानवर के पाँव के निशानात भी मौजूद न थे, जिनसे यह साबित होता कि किसी जानवर ने लाश को अपनी जगह से हटाया है। मैं अब भी यही सोच रहा था कि अचानक लाश में हल्की सी हरकत हुई। मैं हैरान और परेशान यह नज़ारा देख रहा था। उसका ऊपर वाला धड़ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। ये देखते ही मेरी जान जैसे लबों तक आ गई और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज होकर रह गईं। और फिर अचानक लाश का ऊपर वाला धड़ एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। मेरा उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, यकीनन आप समझ सकते हैं। होंठ खुश्क, दिमाग सून और जिस्म जैसे बेजान हो गया हो। उसका कुचला हुआ सर जो एक तरफ लटक रहा था सीधा हुआ और उसकी आंखों की जगह दो सियाह गड्ढे मेरी तरफ घूरने लगे। मुझे और कुछ न सूझा। मैंने उठकर फौरन स्टेशन के साथ मौजूद मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बार बार मुड़कर लाश की तरफ भी देख रहा था। मस्जिद काफ़ी दूर थी, मगर मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। एक बार फिर मैंने मुड़कर लाश की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लाश बगैर टांगों के मेरे पीछे हवा में तैरती हुई आ रही थी। वह ज़मीन से चंद फुट ऊपर थी और अपने बाजुओं को हवा में पतवार की तरह इस्तेमाल करके तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी, ये बताने के लिए मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं। मस्जिद अभी भी काफ़ी दूर थी और अब मैं समझ गया था कि दौड़कर किसी भी सूरत में मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह लाश बहुत करीब पहुंच चुकी थी। इसलिए मैंने रास्ते में मौजूद एक पुराने से कमरे कोठड़ी में घुसने का फैसला किया। ये कमरा गांव वालों ने अपनी ज़मीन पर बनाया हुआ था, जहां वह फसलों को पानी वगैरह लगाते वक्त आराम करते थे। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका और अंदर दाखिल होकर जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई ही थी कि वह आधे जिस्म पर मुश्तमिल लाश दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। मैं पूरी कव्वत से दरवाज़ा पकड़े खड़ा था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वह दरवाजे पर सिर्फ दस्तक दे रहा था। वह दरवाजे पर जोर वगैरह नहीं लगा रहा था, बस मुसलसल एक ही रफ्तार से हाथ से दस्तक दे रहा था। ठक ठक ठक। दरवाजे में बने छोटे छोटे सुराखों से उसकी आंखों से निकलने वाली लाल सी रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म से टकरा रही हों। उन सुराखों से मुझे उसके लंबे काले नाखूनों वाले हाथों की उंगलियां भी नजर आ रही थीं। उसके मुंह से मुसलसल कराहने की अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थीं, जो किसी जानवर की भी नहीं लग रही थीं। उसी लम्हे मेरी नज़र कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। मैं फ़ौरन कोई लम्हा जाया कि बगैर वह खिड़की बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि वह लाश बिजली की सी तेज़ी से खिड़की के सामने पहुंच गई। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसके पहुंचने से एक लम्हा पहले वह खिड़की बंद कर चुका था। कमरे में सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी। मैंने वह चारपाई उठाकर खिड़की के आगे रख दी ताकि खिड़की खुल न सके, और मैं फिर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया।
वह लाश कभी दरवाजे पर और कभी खिड़की पर दस्तक देती रही, मगर अंदर दाखिल होने से कासिर रही। मैं सोचने लगा कि लोग आम तौर पर समझते हैं कि जिन्नात के पास हर तरह की क़ुव्वत होती है। वह गायब हो सकते हैं, कोई भी रूप धार सकते हैं, लोगों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और दीवारों और मकानात वगैरह से बगैर किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। मगर ये कौन सी मखलूक है जो मुर्दा जिस्म में तो दाखिल हो गई, मगर उस लकड़ी के दरवाजे से अंदर आने से कासिर है? ये सारी बातें मेरी सोच से बालातर थीं। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होनी खत्म हो गई और हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। मैंने अभी सोचा ही था कि शायद वह लाश चली गई है कि मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। छत पर कदमों की छाप सुनते ही मेरा खून खुश्क हो गया। मैं समझ गया कि अब वह मखलूक छत के रास्ते अंदर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस कमरे की दीवारें तो पक्की ईंटों और सीमेंट की बनी हुई थीं, मगर उसकी छत कच्ची मिट्टी और लकड़ी के शहतीरों की थी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने तेज़ी से कच्ची छत को खुरचना शुरू कर दिया। मैं इंतहाई बेबसी के आलम में कमरे के बीच में बैठा हुआ था। मुझे यकीन था कि वह बहुत जल्द छत खोद कर अंदर आ जाएगा। उस खौफनाक रात के अंधेरे में मैं उस छत के खुरचने की आवाज़ें वजह तौर पर सुन सकता था। हर खुरच की आवाज़ मेरे दिल पर आरी की तरह चल रही थी। खौफ से मेरा हलक कांटा हो रहा था और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अपनी मौत अब यकीनी नज़र आ रही थी। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और मौत को इंतहाई करीब से देखकर मैं सजदे में गिर गया और अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। मैं गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा ले। थोड़ी ही देर बाद वह लाश छत खोदकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। छत से मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े नीचे गिरे और फिर उस सुराख से वह धड़धड़ाम से फर्श पर आ गिरा। उसकी अंगारों जैसी दहकती आंखें मुझे अपने जिस्म के अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थीं। वह लाश आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं के बल खिसकती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं पीछे होता होता दीवार के कोने से जा लगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी लम्हे मेरी नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ पर लकड़ी का एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, जिस पर खाना काबा और मस्जिद नबवी की निहायत खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी और नीचे सुनहरे हुर्फों में आयत उल कुर्सी लिखी हुई थी। मैंने फ़ौरन बगैर कुछ सोचे समझे वह मुबारक तस्वीर दीवार से उतारी और अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर उसके सामने कर दी। जैसे ही वह तस्वीर उसके सामने आई, वह लाश एक भयानक चीख मारकर चंद कदम पीछे हट गई और फिर अचानक से वह लाश दोबारा टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके दोनों बाजू, सर, कमर और बाकी धड़ सब अलग अलग होकर ज़मीन पर बिखर गए। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। शायद वह लाश मुझे डराकर फिसलाना चाहती थी कि किसी तरह वह तस्वीर मेरे हाथों से गिर जाए और वह मेरा काम तमाम कर दे। मगर मैंने अपने आप पर मुकम्मल काबू रखा और आंखें बंद करके बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए तस्वीर उसकी तरफ करके कमरे में बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद फजर की अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अल्लाहु अकबर की सदा जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मेरी जान में जान आई। अजान की आवाज़ सुनते ही वह लाश एक आखिरी बार तड़पी। उसके टुकड़ों से एक स्याह बदबूदार धुआं निकला और वह धुआं खोदी गई छत के सुराख से निकलकर गायब हो गया। मैं फ़ौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, जिसने मुझे इस यकीनी मौत से बचा लिया था। शुक्राने के नफल अदा करने के बाद मुझ पर ऐसी गनूदगी तारी हुई कि मैं वहीं फर्श पर बेहोश हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, जिससे मैं होश में आया। दरवाजे पर चाचा सिराज थे, जो इस कमरे के मालिक थे। वह बोल रहे थे, कमरे में कौन है? दरवाज़ा खोलो। मैंने हिम्मत करके उठकर दरवाज़ा खोला। मुझे इस हालत में देखकर चाचा सिराज बहुत हैरान हुए और बोले, आप यहाँ? खैरियत तो है? मैंने रात को पेश आने वाला सारा वाक़या उनको सुनाया, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पर जब उन्होंने इस कमरे के दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान और इस कमरे की खोदी हुई छत देखी, तो उनको हल्का हल्का सा यकीन आने लगा। और जब मैं उनको और गांव के 2-4 लोगों को साथ लेकर उस लाश वाली जगह पर गया, तो लाश अपनी जगह पर बिल्कुल सही हालत में रखी हुई थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। चाचा सिराज लाश को देखकर बोले, या अल्लाह रहम, बेचारा कितनी दर्दनाक और ख़तरनाक मौत मरा है। मैंने और गांव वालों ने काफ़ी देर उसकी पहचान करने की कोशिश की, पर उसको कोई नहीं जानता था। और उस ज़माने में मोबाइल, केबल, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं होता था,
کہ اس کی تصویر ہر جگہ پہنچائی جا سکے۔ سو تھک ہار کر عصر کے وقت گاؤں والوں نے اسے وہیں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اپنا تبادلہ شہر کی طرف کروا لیا۔ میں اس ویران اسٹیشن پر ایک دن بھی مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ اس رات نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں 5 وقت کی پابندی سے نماز بھی پڑھنے لگ گیا تھا۔ آج بھی 50 سال گزر جانے کے بعد بھی جب مجھے وہ خوفناک رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا چیز تھی، کوئی جن تھا یا کوئی اور مخلوق، لیکن جو بھی تھا وہ بہت ہی بھیانک اور شیطانی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسی مخلوق کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔